हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। हमने डिल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और सिंबल्स तक कर लिया था, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? सी एटम क्या होता है, मास क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। मास, व्हाट इज मास? मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर वी नो, matter is solid, liquid, gas, and two new matters, forms of matter, states of matter we know. Two newly discovered states of matter are Bose-Einstein condensate and plasma, right? Now we are having five states of matter. This is these are solid, liquid, gas, Bose-Einstein condensate, and plasma, right? So whatever we are having is matter, right? There is nothing which is if some space have nothing, if nothing is present in a space, then that space is vacuum, right? If if suppose air is also not present, if even air is not present, then the space is vacuum, right? Vacuum is a space where no air, no matter is present, right? So if we are having air in some region, in some space, then we are having matter, right? Matter is everywhere except vacuum. And if we leave atmosphere, then there is no matter. So matter is the property of, sorry, mass is the property of matter, right? Mass is the property of matter. Energy have no mass. Energy has no mass. See, what is atom? Atom is the smallest particle which takes part in a chemical reaction. So, atom is what? Atom is something by which all matter is composed of. Right? Every matter is composed of small particles known as matter, atoms. So, if matter has mass and matter has atoms, it means atoms must have some mass, right? So atoms will have are having mass. So what is the mass of an atom? How we can calculate or how we can measure the mass of an atom? So atomic mass can be measured by comparatively measuring it with respect to one atom of carbon, right? Carbon is having two isotopes, right? Carbon is having two isotopes, one is C12 and one is C14. So what are isotopes I'll discuss later, but just in order to understand this, just keep in notice that carbon is having two types of atoms, right? There are two types of atoms in carbon. One type is C12 and another type is C14. So C12 atom is an isotope, right? So C12 atom is used to measure the atomic mass of all the elements. Atomic mass of all the elements is calculated by comparing one atom of all elements with respect to one atom of C12 carbon atom. Mass of one atom of C12 carbon atom. So what is mass of 112 C12, one atom of C12 carbon atom? One atom of C12 carbon atom is having mass which is equal to 12 atomic mass units. We just take it as a reference, right? In order to compare. जो एक एटम होता है कार्बन का, उसका मास लेते हैं हम 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर कार्बन के एक एटम का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट्स हुआ, तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ? एक एटॉमिक मास यूनिट हुआ उसका 12th पार्ट। If one atom of carbon has 12 atomic mass units of mass, then one atomic mass unit is its 1/12th part, right? So we can just divide by 12 also, right? By if we multiply by 1/12 or we just divide by 12, whatever we do is the same thing,
right? So if we divide mass of one atom of carbon by 12, then what we'll have one atomic mass unit. So one atomic mass unit is the mass equivalent to 1/12 mass of one atom of carbon 12, right? Carbon 12 isotope. So we just compare all the atoms of each element by this carbon 12 isotope, one atom of carbon 12 isotope. We get atomic masses of all the elements, right? First, we used oxygen atom, right? First, we used oxygen atom. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब आई उसके बाद उन्होंने जो दिया था, पहले तो ऑक्सीजन से कंपेयर करके एटॉमिक मास बताया था, उसके बाद आया था कार्बन 12, राइट? सो कार्बन इज अबंडेंट, मोर अबंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, carbon is having a size which is moderate, right? Not, neither very small nor very large. And carbon is having equal number of neutrons and protons in its nucleus. If we take carbon 12 isotope, carbon 12 isotope is having equal number of protons and neutrons in nucleus. So these are some reason to decide to take carbon as a reference, carbon 12 atom as reference, right? So according to Dalton's atomic theory, each element has a characteristic atomic mass. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16th of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. So सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, सबसे कार्बन से पहले ऑक्सीजन को लिया था. जैसे हम 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से उन्होंने पहले 1/16th मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कंसीडर किया था एज रेफरिंग यूनिट, एज कंपैरिजन, इन ऑर्डर टू कंपेयर, राइट? तो रेफरिंग यूनिट के लिए या 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास के लिए इन्होंने 1/16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम कंसीडर किया था. दिस वॉज कंसिडर्ड बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स. दो रीज़न थे. पहला तो ये कि ऑक्सीजन ज़्यादा एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है. दूसरा, एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स. इसके कंपैरिजन से जो भी एटॉमिक मासेस आए थे एलिमेंट्स के, वो ऑलमोस्ट होल नंबर्स थे सारे, राइट? So, however, in 1961, for a university accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्ट जो हुआ था वो क्या हुआ था? कार्बन 12 आइसोटोप एक्सेप्ट हुआ था. किसके लिए? इसी स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, राइट? वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 isotope is what is one atomic mass unit, right? Atomic mass unit is written in short as U, which means unified mass. If we write AMU, it means atomic mass unit. We can write U also instead of AMU. AMU is also atomic mass unit and U is also atomic mass unit, but U comes from unified mass. U stands for unified mass, right? So if we write 12U, right, it is also can be written as 12 AMU, right? In both the cases we just mean the same thing. We mean it is atomic mass of carbon, which is 12 atomic mass unit, either or 12 unified mass, right? 12 U is also read as atomic mass unit. We can read a U as a atomic mass unit, right? So since determining the mass of an individual atom is a relatively difficult task, relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. The relative right. So इससे क्या हमने क्या किया है, हमने कैसे निकाला है सारे एलिमेंट्स का मास? हमने सारे एलिमेंट्स के एक एक एटम को कंपेयर किया है कार्बन 12 एटम से. कार्बन 12 एटम के कंपैरिजन में जितना एटॉमिक मास आ रहा था किसी भी एलिमेंट का, वो क्या है? उसका एटॉमिक मास है, राइट? जैसे सपोज अगर हम बात करें
क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट. 35.5 atomic mass unit is just near to 36. It means if we take 3 atoms of carbon 12 atom, right, 3 atoms of carbon 12 isotope, 3 atoms, meaning if one atom has 12 atomic mass units, then 3 atom will have, it is 36 atomic mass unit. 12 into 3, right? So 36 atomic mass units are just above the 35.5 value. So if we, when we compare the one atom of carbon chlorine with 3 atoms of carbon 12, then we'll get a little bit more atomic mass, right? If we just cut off a small portion from one of the atom, and just if we just cut off the zero point 0.5 atomic mass units, right, then we can get the balanced equal on both sides, right? So 35.5 is just near to 36, which is the mass of 3 atoms of carbon 12 isotope. So we just compare all the atoms of each elements, sorry, all the elements, one atom of all the elements with C12 carbon isotope, and we get the atomic mass. The relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average masses of the atom as compared to 1/12 the mass of one atom carbon 12 atom, right? One carbon 12 atom. So I have told you this. Now existence of atoms. एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं. ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इनर्ट गैसेस के, जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं. दोज गैसेस आर नॉन रिएक्टिव गैसेस. फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. So helium, neon, argon, xenon, radon, right? All these are what? All these are noble और inert gases. So इन्हें noble गैस कहिए या inert गैस कहिए, कोई दिक्कत नहीं. इनका मतलब है कि ये रिएक्ट नहीं करेंगी. एंड दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन ग्रुप 18 इन पीरियोडिक टेबल, राइट. तो ये ऐसी होती हैं गैसेस जिनके एक एक एटम सिंगल इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है, राइट. यानी कि नेचर में एक एटम की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, मतलब सिंगल एटम इनका मिल सकता है नेचर में, बिकॉज ये इनर्ट गैसेस है और ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ ज़्यादा, राइट. तो ये गैसेस कहलाती हैं नोबल गैसेस. इनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, राइट. इनकी एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो इन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मोनो एटॉमिक. द एटम्स ऑफ only a few elements called noble gases are chemically unreactive and exist in free state as single atoms. Now first point is atoms of most elements are chemically very reactive and do not exist independently. बहुत ज़्यादा ऐसे elements हैं, ज़्यादातर सारे elements except inert gases, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इन द सेंस वो एक एटम की सिंगल एटम की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विच एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद आती है, राइट. और ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और ऐसे ऐसे बहुत सारे आयंस जब इकट्ठा होते हैं तो कोई फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं, स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं, ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ मॉलिक्यूल इज व्हाट? मॉलिक्यूल इज smallest particle of an atom or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबल है और सारी प्रॉपर्टीज़ शो करता है उस सब्सटेंस की, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल.
यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही एटम है तो वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो उस मैटर की उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। उसे बोलेंगे उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में दो एटम्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एन नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, सेम काइंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। एंड O2 मॉलिक्यूल, it means it means two atoms are chemically combined together to form a molecule. It is the smallest particle which can exist independently and shows all the properties of oxygen. I think it's clear, right? So in general, a molecule is a group of two or more atoms that are chemically bonded together. Generally two or more atoms एक साथ जुड़े होते हैं, right? They can be of same type, they can be of different types. Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules. According to these, there are two types of molecules: molecule of elements and molecule of compounds. Molecule of elements are those molecules which have same type of atoms, whether 2, 3, 4, it doesn't matter, right? Molecules of an element contain two or more similar atoms chemically combined together. For example, hydrogen gas consists of H2 molecules, nitrogen gas consists of N2 molecules, sulfur consists of S8 molecules, and ozone consists of O3 molecules, phosphorus consists of P4 molecules. Meaning, we are able to see here all the atoms are of same type, right? Whether it is 2, it is 3, it is 8, it is 4, it doesn't matter. We are having all these same types of atoms combined together to form one molecule. Here in this molecules of elements. Now we are having molecules of compounds. Molecule of compounds are those molecules which have different atoms chemically combined together to form a smallest unit which can exist independently, right? Molecule of a compound contains two or more different types of atoms chemically combined together in a definite proportion. For example, hydrogen chloride molecule contains hydrogen and chlorine atom, right? Water molecule consists of hydrogen and oxygen atoms, etc. And if we suppose we want to take more example, then we can take an example of carbon dioxide. Similarly, we are having glucose having three types of atoms: carbon, hydrogen, oxygen. All carbohydrates have three types of atoms: carbon, hydrogen, and oxygen. What are ions? Now ions are the charged atom or group of atoms, right? We are having an atom. If it is having a charge plus or minus, then it is an ion. If we are having group of atoms and it is having charge plus or minus, then it is also an ion. But the both ions are different and the categorized under two different headings, right? One is simple ion and another is compound ion. We'll discuss in detail later, right? It is formed by gain and lose of electron, right? Valence electrons. ठीक है. It is formed by the loss or gain of one or more valence electrons by an atom, so it contains an unequal number of electrons and protons. आयंस के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं होता है, क्योंकि चार्ज जब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो गए तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इन केस पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव कम है तब पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा। इन केस नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है पॉजिटिव कम है तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज cation and negatively charged ion is known as anion. Cation is smaller in size than its parent atom because cation is formed by loss of electrons of in valence shell. The valence shell electrons are lost, so therefore the outermost shell is just gone and the size is a bit smaller than the original atomic size, right? So similarly, anion is what? Anion is equal to the original size of an atom because anions are formed by gaining of electron, and gaining of electron doesn't cause the rupture of outermost shell, right? And a cation is stable as compared to its parent atom, and number of electrons in a cation is less than the number of protons. The electron is unreactive. The cation is unreactive. It is usually contain 8 electrons in its outermost shell,
आयंस ऑफ ऑल दी एलिमेंट मेटल एलिमेंट्स आर कैटाइंस। मेटालिक जितने भी एटम्स हैं, मेटल जितने भी हैं, सब कैटाइंस ही फॉर्म करते हैं, क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्टेबल होने के लिए वो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। स्टेबिलिटी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके आएगी, तो वन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होने पे क्या बनेगा? कैटाइन बनेगा। तो मेटल्स सारे ऐसे होते हैं, और मेटल हमेशा कैटाइंस ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब, राइट। बट एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और अमोनियम आयन, राइट। हम हाइड्रोजन और अमोनियम आयन जो हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं। हाइड्रोजन वैसे तो मेटल या नॉन मेटल किसी की तरह बिहेव नहीं, मतलब हम किसी एक कैटेगरी में नहीं डालते हैं हाइड्रोजन को, ना तो मेटल की ना नॉन मेटल की। बट अगर उसके मॉलिक्यूल के ऊपर जाएं, मॉलिक्यूल कैसा है? H2, और मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये बिहेवियर कैसा हुआ? नॉन मेटल की तरह हुआ, तो इसलिए हम उसको नॉन मेटल ही बोल सकते हैं। नाउ एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। एनायंस कैसे होते हैं? एनायंस बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। एनायंस कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ 1 और more इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव, जो एनायन है, राइट। एग्जाम्पल है एक, सिंस एन एनायन इज फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, देयरफॉर एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम does not change upon the formation of the anion. An anion is bigger in size than its parent atom. An anion is stable as compared to its parent atom. The number of electrons in an anion is more than the number of protons. An anion is unreactive as it usually contains 8 electrons in its outermost shell. The ions of all non-metals are anions. Non-metal के जितने भी ions होते हैं सारे anions होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि सभी क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ magnitude of negative charge is usually more than the positive charge in anions. So it means all are negatively charged ions which are made by non-metals. सिंपल आयंस एंड कंपाउंड। आई हैव टोल्ड यू दिस। सिंपल आयन किसे कहते हैं, कंपाउंड आयन किसे कहते हैं? सिंपल आयन दोज आयंस विच आर हैविंग one atom only. If one atom is having some charge, positive or negative, then it is simple. And if the group of atoms is having charge positive or negative, it is compound. If suppose two atoms are combined and having charge, it is compound. If 3 or 4 5 x n number of atoms are combined together and having charge, देन इट इज़ कंपाउंड आयन। आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, दो दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी कि हमें पता है पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इट मीन्स cations will attract anions and anions will attract cations. So cations and anions के attraction से जो बनेगा वो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड। और अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि मेटल्स हमेशा कैटाइंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनाइंस बनाते हैं। तो इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी। सो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, जैसे NaCl। NaCl क्या है? सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है या कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों होते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हमें पता है अपोजिट चार्जेस वाले होते हैं। सोडियम आयन में प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन सोडियम आयन का अट्रैक्ट्स क्लोरीन आयन and forms an ionic bond, then they form a compound known as ionic compound, right? So example दिया मैंने सोडियम और क्लोरीन का। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में, उसके सिंबल्स को यूज़ करके अगर कोई फार्मूला लिखा जाए किसी कंपाउंड का, तो उसको बोलते हैं हम chemical formula. It is based upon the composition of the compound, right? The formula of a compound tells us the kind of atoms as well as the number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. तो एक फार्मूला जो होता है किसी कंपाउंड को हमें बताता है कि कितने और किस किस टाइप के एटम्स जो हैं, किस किस एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं, और कैसे वो मॉलिक्यूल बन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वाटर के H2O, तो हमें H2O का फॉर्मूला, ये H2O क्या है? केमिकल फार्मूला है, जिससे हमें क्या पता लग रहा है? जिससे हमें पता लग रहा है दो टाइप के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है।
और कितने एटम्स हैं ये भी पता लग रहा है कि 3 है टोटल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, राइट। तो 3 एटम्स 2 टाइप के आपस में केमिकली कंबाइन टुगेदर हैं, केमिकली जुड़े हुए हैं, और क्या बना रहे हैं, ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। तो हमें अगर केमिकल फार्मूला लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम, राइट। बाइनरी कंपाउंड कहते हैं अगर 2 एटम्स 2 एलिमेंट से बना हुआ है, राइट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयंस को प्रेजेंट करता है। सो नाउ हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है, हमें वैलेंसी पता होना चाहिए, राइट। हमें वैलेंसी पता होगी तो हमें चार्ज मालूम पड़ जाएगा कि किस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, राइट। और हमें सिंबल्स पता होना चाहिए एलिमेंट के, तो आप पहले सिंबल्स लर्न करेंगे, फिर एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे। एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाज़ा होगा, दैट विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन फिर भी अभी के लिए अभी क्या करना है हमें याद, हमें सिंबल्स सारे लर्न करने हैं, राइट। और सिंबल्स के साथ साथ आयंस को लर्न कर लेना। आयंस वाला टेबल एक गिवन है एनसीईआरटी में, जिसमें आयंस दे रखे हैं, कुछ आयंस के कंपाउंड आयंस के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। जैसे CO3 कार्बोनेट आयन जो होता है वो कैसा होता है, CO3 2 नेगेटिव आयन होता है, CO3 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है। उसके अलावा NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन है। उसके अलावा सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट आयन है। तो ये सारे आयंस आपको लर्न करने हैं। दिस इज गिवन इन ए टेबल इन द बुक एनसीईआरटी, राइट। सो आयंस याद कर लिए और सिंबल्स याद कर लिए, काम आसान हो जाएगा बहुत। सी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी जितने एटम्स के साथ जितने एटम्स कंबाइन हो सकते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये होती है वैलेंसी, राइट। तो जितने एलिमेंट वो, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, उतना वो चार्ज आएगा उसके ऊपर, राइट, आयन के, उसके आयन के ऊपर। तो उसी हिसाब से कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको वैलेंसी कहते हैं, राइट। Now valency can be used to find out how the atom of an element will combine with atoms of different another element to form a chemical compound. While writing a chemical formula, the symbols of element which form the compound are written below the symbol of each element. Its valency is written like this. Suppose if we want to make the formula of hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन और सल्फर होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, सल्फर लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन सल्फर का सिंबल लिखेंगे H और S। उसके नीचे उनकी वैलेंसीज लिख देंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। हम चार्ज से वैलेंसी देख सकते हैं। अगर आयंस हमें याद है तो आयंस के ऊपर कुछ जो चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोजन के आयन पे हाइड्रोजन के आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो नीचे 1 पॉजिटिव, और सल्फर के आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे 2 नेगेटिव लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करने के बाद जो 2 और 1 चार्ज का नंबर है ये सिंबल्स के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा नीचे, राइट, हैंगिंग में। जैसे H2S लिखा है ना, H2S में 2 नीचे लिखा है, बड़ा नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते हम H2S, ये गलत है। इस तरह लिख सकते हैं हम, H बड़ा, 2 छोटा और S बड़ा, राइट। रीड H2S करेंगे लेकिन ऐसे लिखेंगे H2S, H2 को छोटा लिखेंगे थोड़ा सा, नीचे है लटका हुआ, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। चार्जेस मतलब चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने चार्जेस पॉजिटिव हैं उतने ही चार्जेस नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और एक आयन पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस कंपाउंड बनाने में 2 लगेंगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव वाले कितने हैं, 2 हैं, तो उनको न्यूट्रल करने के लिए 2 ही नेगेटिव चार्ज चाहिए। और 2 नेगेटिव चार्जेस एक ही आयन पे हों तो चलेगा, और 2 एक आयन पे नहीं है तो 2 अलग अलग आयन पे होना चाहिए फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चार्जेस बैलेंस करने हैं। इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयन द आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो, ठीक है। तो जो अगर कंपाउंड आयन है, कंपाउंड आयन के अंदर अगर 2 आयन लग रहे हैं कंपाउंड, तो उसको ब्रैकेट, पूरे आयन को, कंपाउंड आयन को ब्रैकेट में लेके सबस्क्रिप्ट लिखेंगे 2 या 3 या 4, जिससे कि हमारा चार्ज बैलेंस हो जाए और रेशियो इंडिकेट हो।
राइट। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन से बनेगा। अमोनियम आयन का फॉर्मूला लिख दिया NH4, सल्फेट आयन का फॉर्मूला लिख दिया SO4। चार्जेस नीचे लिख दिया, अमोनियम आयन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट आयन पे दो नेगेटिव चार्ज होता है। क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद जो 2 है वो अमोनियम के साथ लगेगा, पूरे अमोनियम आयन को ब्रैकेट में लेके, राइट, पूरे अमोनियम आयन्स को ब्रैकेट में रख के 2 लगाएंगे। इट मीन्स होल अमोनियम आयन्स आर 2 इन नंबर, यानी कि 2 अमोनियम आयन्स कंप्लीटली कंबाइन होंगे एक सल्फेट आयन के साथ, ठीक है, जिससे क्या होगा, चार्ज बैलेंस होगा या न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो 2 है नेगेटिव के और एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है अमोनियम के पास। तो अमोनियम आयन 2 मिल के न्यूट्रल कर पाएंगे सल्फेट आयन को, एक सल्फेट आयन को, राइट। सो दिस इज NH4 होल ट्वाइस SO4, राइट, इट इज अमोनियम सल्फेट। Now, when a compound consists of a metal and non-metal, the name of or symbol of the metal is written first, whereas the non-metal is written later. So, metal is named as but the name of non-metal element is changed to have the ending ide, like oxide, chloride, sulfide. अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बनाते हैं कोई कंपाउंड यानी कंपाउंड, तो मेटल के नाम से कहानी शुरू होगी कंपाउंड के नाम में, और जो नॉन मेटल का नाम है उस पर ख़त्म होगी। नॉन मेटल के नाम में IDE लग जाएगा लास्ट में, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाएगा, क्लोराइड क्लोरीन से क्लोराइड, सल्फर से सल्फाइड, इस तरीके से। इन द फॉर्मूला द चार्जेस और द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, तो चार्ज नहीं दिखाए जाते फॉर्मूला में क्योंकि चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है सब्सटेंस के, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। वो कैसे आता है, जितने भी मॉलिक्यूल में एटम्स हैं सबके एटॉमिक मासेस का सम करके, राइट। सिमिलरली फार्मूला यूनिट मास जो होता है वो भी सेम होता है, बट फर्क क्या है मॉलिक्यूलर मास में, फार्मूला यूनिट मास में। फार्मूला यूनिट मास कहते हैं किसके केस में, आयनिक कंपाउंड के केस में। जब आयनिक कंपाउंड बनता है, आयन्स के फॉर्मेशन से बनता है, तो आयंस के फॉर्मेशन के बाद आयनिक कंपाउंड बनता है, जो उसके मास को बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। उसमें भी सेम तरीका है, जितने भी एटम्स हैं सबके एटम्स एटॉमिक मासेस का सम करके हम निकालते हैं, राइट। जैसे NaCl का क्या है, NaCl का होता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। कैसे निकाला, सोडियम होता है 1, सोडियम का एटॉमिक मास लिखा 23, ठीक है, 23 × 1 प्लस 35.5 × 1, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है 35.5। सोडियम और क्लोरीन एक एक है इसलिए 1 1 से मल्टीप्लाई, अगर 2 होता कोई सा भी तो 2 से मल्टीप्लाई। जैसे MgCl2 में मैग्नीशियम का मास तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन का मास 2 से मल्टीप्लाई होगा। 35.5 में उसके केस में क्या मल्टीप्लाई होगा, 35.5 से 2, यानी 35.5 × 2 आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में। और ये सोडियम क्लोराइड के केस में क्योंकि सोडियम और क्लोरीन एक एक एटम ही है, एक एक आयन ही है, तो इसमें हमने 1 1 मल्टीप्लाई किया। सो 23 × 1 प्लस 35.5 × 1 इट इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ कम टू मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट किसने दिया था, विल्हेम ओसवाल्ड ने दिया था, ठीक है। तो ये एक केमिस्ट हैं, इन्होंने दिया था, राइट। तो ओ मोल किसे कहते हैं, पहले तो सबसे चीज़ ये है मोल कहते किसे हैं। मोल एक काउंटिंग है एक तरीके से, जैसे हम नंबर्स को नाप, एक जैसे वहाँ पर डज़न है ना, डज़न, डज़न का मतलब क्या होता है 12 12, एक दर्जन। जैसे हम 1 डज़न एग्स लेते हैं, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन अंडे, तो 1 दर्जन में क्या आता है, 1 दर्जन में 12 नंबर्स आते हैं किसी भी चीज़ के, राइट। किसी भी चीज़ के 12 नंबर, पेयर में 2 आते हैं, ठीक है, 1 पेयर मतलब 2, राइट। तो इसी तरीके से एक मोल है, मोल में भी नंबर्स आते हैं, यानी एक मोल की जब बात की तो उसमें कितने नंबर्स आएंगे, 6.022 × 10⁻23, 6.22 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं। मोल का मतलब, मोल वर्ड का मतलब है लैटिन में मोल कहते हैं हीप को। हीप मतलब एक ढेर, एक कोनिकल शेप का, इन्वर्टेड कोन की शेप का एक ढेर, गट्ठर, उसे बोलते हैं हीप, राइट। तो उसमें कितने आते हैं, 6.022 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये जो है 1 मोल में कंसीडर होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये गलती से पावर को ऐसे लिख दिया है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10⁻23, ठीक है, 10⁻23 है ये। 10
1023 नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ 10⁻23, ये याद रखना है। तो एक मोल का क्या मतलब है, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मतलब है कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, और उनका जो मास होता है उसे बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोल का मास यानी मोलर मास। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट हटा के ग्राम लिख देते हैं, यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ही मोलर मास होता है। अगर हम एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं, यानी किसी सॉलिड पीस ऑफ सॉलिड को ले लिया, एल्यूमिनियम का पीस ऑफ सॉलिड है सपोज, एक पीस ऑफ सॉलिड है जिस किसका बना हुआ है, वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उसके अंदर सारे एल्यूमिनियम एटम्स की बात हो रही है। तो अगर हमने एटॉमिक लेवल पे कंसीडर किया है काउंटिंग को, तो हम ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास लेंगे। और अगर हमने किसी सब्सटेंस को कंसीडर किया है जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया है, तो वाटर के अंदर हम काउंट जो करेंगे वो H2O करेंगे। पता है, हमें मालूम है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास ही कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस की। अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर में H2O 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 बहुत सारे H2O होंगे, तो सारे H2O को काउंट करेंगे हम, काउंट 1 2 3 इस तरह। जब हम काउंट करेंगे सारे H2O को, तो वो निकलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, अगर हमने वाटर 1 मोल लिया है, वरना 1 मोल वाटर कंसिडर किया है तो। और उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो होगा 18 ग्राम, जिसे हम बोलेंगे मोलर मास। 18 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि क्या होता है वाटर का, 18 एटॉमिक मास यूनिट वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है। हमने कैसे निकाला 18, H2O होता है ना H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो यानी 2 × 1, क्योंकि 1 जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 1 + 16 ये हो जाएगा 18, 18। तो 18 इज़ वॉट, 18 इज़ एटॉमिक, 18 atomic mass unit is molecular mass of water. And when this molecular mass is measured in grams, suppose if we remove atomic mass unit and we just put G here, right, G, so it is 18 gram, it is gram atomic, sorry, gram molecular mass, and this gram molecular mass is molar mass of water, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास इतना ही होगा, ग्राम 18 ग्राम। यानी अगर हमने वाटर ले लिया और उसमें 18 ग्राम वाटर हम मेजर करके ले लें, 18 ग्राम हम तोल सकते हैं, 18 ग्राम हम वे कर सकते हैं, 18 ग्राम हमने वे कर लिया, मेजर कर लिया मास को। 18 ग्राम पानी को हमने तोल लिया, तो 18 ग्राम पानी में हमने 1 मोल पानी ले लिया, 1 मोल वाटर, क्योंकि उसके अंदर फिर कितने पार्टिकल, अप्रॉक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर ही आएंगे, राइट। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ। और इस मोल कॉन्सेप्ट पे हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। एन, स्मॉल एन इज क्या, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल, and small m is given mass, capital M is molar mass, capital N is number of particles, and naught is Avogadro's number. Avogadro's number is the same thing, which is 6.022 into 10 raised to power 23. So this is Avogadro's number, right? Now we are having some important formula here, and small n is equal to small m upon capital M, small n is equal to capital N upon n naught, small m is equal to capital M into small n। देखिए हमारे पास बेसिकली एक ही फार्मूला है, बल्कि एक नहीं दो, इन दो से हमने सारे निकाल दिए। कौन से 2 फार्मूले हमारे पास, एक है स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसी गिवन मास में, तो हम उस गिवन मास को उसके उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। सपोज अगर कोई मुझसे कहता है कि 36 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, भाई हमें पता है कि 1 मोल का मास है 18 ग्राम, तो 36 ग्राम का कैसे क्या आएगा, 36 ग्राम का 2 मोल आएंगे। यानी हमने किया हमने 36 ग्राम को ऊपर रखा और 18 को नीचे रखा, और हमने निकाल दिया 2 मोल्स, राइट। तो दिस इज क्या, गिवन मास, एंड दिस इज क्या, मोलर मास, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। आई थिंक इट्स क्लियर। Similarly, if we are having number of particles, then also we can calculate number of moles, यानी small n is equal to number of particles, given number of particles upon n naught। अगर हमें कोई कह दे कि आपके पास है 12.044 into 10⁻23 particles, then how many moles are there? We know if 1 mole is having 6.022 into 10⁻23 particles, then 12.044 into 10⁻23 particles must have two number of moles. We just divided given number of particles, atoms of molecule, by Avogadro's number. For example, suppose we are given
12.044 into 10 raised to power 23 particles. Then we just divided it by 6.022 into 10 raised to power 23, which is Avogadro's number. So it is divide होकर क्या आएगा 2. So this is how we just calculate number of moles. अब हम इन फॉर्मूलों को अगर सपोज मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इनसे हम न्यू डिड्यूस कर सकते हैं. जैसे सपोज अगर हमने दो फॉर्मूले देखे, एक तो देखा स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, और एक देखा स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट. अब अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर दें, यानी दोनों एन की वैल्यूज़ हैं ना स्मॉल एन की, तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम can be written equal to capital N upon N naught, right? It is equal to like this. So if we are given three things out of these four, then we can calculate the fourth one easily. Suppose we want to calculate small m, right, given mass, so it is equal to capital N upon N naught into molar mass capital M, right? So इसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना हो, n निकालना हो कैपिटल, तो कैपिटल N is equal to what, small m upon capital M into एंड नॉट एवोगाद्रोस नंबर. सो ये सारे मॉडिफाई होते हैं, एक दूसरे से डिड्यूस होते हैं. तो ये मैंने सारे फार्मूले जो भी पॉसिबल फार्मूलेज हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, राइट. इसमें ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं पे मिस प्रिंटिंग है. मिस प्रिंटिंग क्या है, कहीं कहीं पे प्रिंट हुआ ही नहीं है. सो एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम है फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड वाले में एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट है. बाकी के सारे जो है इन्हीं दोनों से डिड्यूस हुए हुए, ये सारे जो है सब इनसे डिराइव्ड है, राइट. सो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ. वी जस्ट कंप्लीटेड आवर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो आज के लिए इतना बहुत है. आज थोड़ी सी लंबा सेशन हो गया है, तो समझ लीजिएगा, जो समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं. और इनसे इस पूरे जो नोट्स हैं इनसे आप नोट्स बना लीजिएगा अपने नोटबुक में ज़रूर, राइट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स. नोट्स की नोटबुक में नोट्स बना लिए इससे, और इनकी एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह, राइट. सो थैंक यू वेरी मच.